Sameer Sood from Police DAV Public School, Ludhiana. The name of the principal is Dr. Anu Verma, and I would request Dr. Rashmi Vij to kindly come and share a few words. From good afternoon to good evening, everyone. You'll be wondering how come I am here. I have the privilege of being the founder and the manager of the school Police DAV. So there is no more luckier than me in this hall that whose two schools teachers representatives have been selected for the national ceremony. So the school was founded by us in 2011. And a small school, but now it is one of the lead schools of the city of Ludhiana with 3,600 students, and it is doing extremely well. कहते हैं ना कि जब बेटा बाप जितना कद काट लेता है तो वो बाप से प्राउड कोई नहीं होता. So that is what has happened to us, that we started the school which was the third among the chain of police DAV started by Punjab Police in collaboration with DAV. But it is doing extremely well, and Dr. Anu Verma, the founder principal, is very hardworking, committed. Because of some personal reasons, she couldn't make it today, but I am very happy to substitute her here. So we have with us a very, very dedicated and committed biology teacher who teaches +1 and +2 the subject of biology in a very, very interesting manner. I had the privilege to be sitting in his interview when we selected him, and subsequently I have been interacting with him, and he makes the subject so very interesting that makes the children fall in love with biology. So many of them wanting to follow up taking medical or biology as their field of specialization in the years to come forward. I, on behalf of the principal, Dr. Anu Verma, wish Sameer very, very good luck, and I hope that Police DAV wins. Right. Thank you. School wish you all the best, and we are very proud that you have reached so far, and we are 100% sure that you will be successful in whatever you are undertaking. All the very best to you. All the best. Poor thing. So, Realized I'm making a very good evening to all the jury members, my fellow colleagues, and my students as well for today. My learning outcomes for the topic will be to know the definition of infertility, why this is important, and how to use this definition in the context of patient circumstances, to learn the basic scientific facts which will enable the understanding of the causes of infertility and provides the basis for management, to list some of the options to treat infertility or to assist in the fertilization process. So these will be the learning outcomes. And this is for the key. Yeah. काम पे जा रही हो. इससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। चांसेस मुझे तुम्हारे मेंटल बैलेंस खोने की जरूरत है. मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मुझसे झूठ बोल के तुम अपने दोस्तों के साथ कैसे ड्रिंक करने जा सकती हो बड़ो? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे सॉरी कहा, फिर शुरू हो गई. सॉरी तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए। मैंने तो बस ऐसे ही बोला क्योंकि तुम नकली थी। ऐसे भी अपनी फर्टाइल डेज वेस्ट नहीं कर सकती।
शर्मा गए देख के। And biology only student कभी शर्माते नहीं हैं. The thing what Kareena Kapoor is trying to filter out here in this movie, what is the name of the movie? Good news. गुड न्यूज. सो यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने एक बात कही कि मैं अपने फर्टाइल डेज मिस नहीं करना चाहती. तो व्हाट आर फर्टाइल डेज? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फर्टाइल डेज बच्चों क्या है. अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मार्च को शुरू होता है तो 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक उसके फर्टाइल डेज हैं जब ओवुलेशन होती है और कंसीव करने के चांसेस सबसे मैक्सिमम होते हैं. अब आपने सुना था गुड न्यूज में करीना कपूर पार्टी में कहती है कि 7 साल हो गए, दे आर नॉट एबल टू कंसीव. सो बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजी कहती है कि अगर कोई कपल 2 इयर्स तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेथड्स और तब भी वो कंसीव ना कर पाए तो दैट इज काउंटेड एज इनफर्टिलिटी. सो दैट इज माय टॉपिक ऑफ कंसर्न फॉर टुडे. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू WHO क्या कहता है कि 6 में से 1 इंसान इनफर्टाइल होता है इन द वर्ल्ड. एंड इंडिया में द रेशियो ऑफ इनफर्टिलिटी इज 20%. और अगर मैं स्टैट्स आपको लेटेस्ट दिखाऊं तो लेटेस्ट स्टैट्स क्या दिखाते हैं? द हाईएस्ट इनफर्टिलिटी रेट्स आर इन दीज स्टेट्स एंड इन दीज यूनियन टेरिटरीज. एंड साउथ में इनफर्टिलिटी के रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है. और ये जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हु इज एट गिल्ट? What is this strip known as? Can anyone tell me? What is this strip? Pregnancy testing kit. Preg news simply. There is one dark line. What is one dark line indicating? The pregnancy test is negative. If there are 2 red lines, the pregnancy test is Positive. now negative again. It's my fault or my fault. Both are at guilt. कि उसका fault है या उसका fault है. तो ये social जो stigma है, social stigma, ये दोनों को guilt पे रखता है. But बायोलॉजी क्या कहती है? स्टैट्स क्या कहते हैं कि द मेजर प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. बट हु इज ऑफन ब्लेम्ड? फीमेल. बट द मेजर प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. और मेल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. स्पर्म मोटिलिटी कम होती है, स्पर्म काउंट कम होता है इसकी वजह से. बट फीमेल्स में भी प्रॉब्लम होती है. दैट कुड बी ड्यू टू डैमेज फैलोपियन ट्यूब्स, इट कुड बी ड्यू टू पुअर एग क्वालिटी. और आज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेजर कॉज इनफर्टिलिटी का है जो गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं that is PCOS और PCOD, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं. that is polycystic ovarian syndrome और polycystic ovarian disease, जिसमें क्या होता है irregular menstrual cycles आते हैं, बॉडी पे एक्ने बार बार अपीयर होते हैं. और अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो कोई भी सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, उसे गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए. बट स्टिल पीपल डोंट विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट. अब अगर हम बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है? अब इनफर्टिलिटी जो है उसके ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं. अब आप जब मार्केट में या स्ट्रीट पे जाते हैं सबसे पहले आपको बैनर्स लगे मिलते हैं आजकल बहुत बड़े बड़े. कौन से सेंटर्स के? IVF, वरदान IVF, इंदिरा IVF. व्हाट इज IVF? पढ़ के आए आप लोग? इन विट्रो या उसे कौन सा प्रोग्राम कहते हैं? कौन से किस ट्यूब में बच्चा आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं. बट सिर्फ वही मेथड नहीं है जिससे क्या है कंसीव किया जा सकता है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं. पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन विट्रो और इन विवो का मतलब क्या है बायोलॉजी में. इन विट्रो मींस आउटसाइड द बॉडी, इन विवो मींस इनसाइड द बॉडी. तो आउटसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं वो इन विट्रो है. और अगर किसी में स्पर्म काउंट लो है या किसी में एग की क्वालिटी पुअर है और उसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन. तो उससे रिलेटेड आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो दैट इज मेंशन्ड हियर. So, if you see here, तो IVF के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है. Now, when IVF is done, IVF में सबसे पहले स्पर्म और एग को लैब में टेस्ट ट्यूब में फ्यूज किया जाता है और जाइगोट बनाया जाता है. बट जो जाइगोट फॉर्म होता है सिमुलेटेड कंडीशंस के अंदर, उस जाइगोट को डायरेक्टली बॉडी में हम नहीं डाल सकते. जाइगोट की डिवीजन होती है. जाइगोट इज अ सिंगल सेल. पहले वो 2 सेल्स बनाता है, फिर वो 4 सेल्स बनाता है, फिर वो 8 सेल्स बनाता है. उन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स.
तो ब्लास्टोमियर्स की एक स्टेज होती है, उस स्टेज पे हमें उसे इनकॉर्पोरेट करना होता है, तो वो स्टेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा is the non-motility of sperm's uterus. Here with up to 8 blastomeres. ना। अगर ब्लास्टोमियर्स अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है, ये ध्यान से नोटिस कीजिएगा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में इनकॉर्पोरेट करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड, हाँ जी बोलिए, जिफ। व्हाट इज जिफ? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा हो जाए, Hairs is transferred into the fallopian tube. An embryo and if it is more than 8 blastomeres, we have to transfer it in the uterus. What is that phenomenon known as? IUT. What is IUT? Intrauterine transfer. तो बच्चों IVF से कुछ नहीं होगा, IVF के बाद इनकॉर्पोरेशन से होगा। तो IVF प्लस ट्रांसफर, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। बच्चों को ये लगता है IVF ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, पर IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है या नहीं है? नहीं है। IVF प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफर जब होगा, वो पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। अब इससे रिलेटेड आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। एक बहुत अच्छी इंटरएक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। तो अच्छा मुझे ये बताइए, क्या IVF किसी फीमेल के लिए करवाना बहुत इजी है? नो। IVF में एक फीमेल को बार-बार इंजेक्शंस लगते हैं सुपर ओवुलेशन के लिए। एक फीमेल एक मंथ में कितने एग्स रिलीज करती है थ्रू वन ओवुलेशन? 1। सुपर ओवुलेशन में 6 से 7 एग्स रिलीज करवाए जाते हैं। उसके लिए बार-बार क्या करना पड़ता है? उसे एग्स उसको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो हियर इज द फिनोमेना वेयर try again. Excellent. पहले स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज एंड मूवमेंट बाय मेडिसिन्स, देन रिट्राइवल ऑफ द एग्स, Try again. Excellent. एग्स को रिट्राइव कर लिया वेजाइना से, उसके बाद मेल पार्टनर से क्या कलेक्ट किया जाता है? Try again. सीमन Excellent. सैंपल। सीमन सैंपल कलेक्ट करने के बाद एग और सीमन को 18 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। वही टेम्परेचर दिया जाता है जो एक्चुअली फीमेल की बॉडी में होता है। Try again. Excellent. और करने के बाद देन द स्पर्म विल पेनिट्रेट इनटू द Try again. एग। Try again. Try again. Excellent. आफ्टर पेनिट्रेशन व्हाट विल बी देयर? Try again. Formation of the Excellent. zygote and then it will be transferred into the female Excellent. body. अच्छा मुझे बताइए, अगर zygote 8 blastomeres तक है तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? Fallopian tube. What is the phenomena known as? ZIF. Full form. Zygote intrafallopian transfer. अगर 8 blastomeres से ज्यादा है, uterus. What is the phenomena called? IUT. Full form बताइए। तो समझ आ गया सारा? बट मैंने जैसे बताया ये अकेला मेथड नहीं है, हमारे पास और मेथड्स भी हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और मेथड्स भी हैं, पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, कैन एनीवन टेल मी वेयर वाज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस? किस कंट्री में? कंट्री इंग्लैंड। इंडिया पीछे नहीं है। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी 1978 अक्टूबर 3 को उन्होंने सेकंड IVF बच्चा प्रोड्यूस किया था एंड हर नेम इज कनुप्रिया अग्रवाल एंड शी इज लिविंग बट डॉक्टर सर हैज एक्सपायर्ड। पर इंडिया ने भी फर्स्ट IVF 1978 में कर दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ किताबों से नहीं उसके अलावा भी जानकारी केबीसी में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट द सेकंड मेथड जिससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गिफ्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट? पढ़िए, गैमीट इंट्राफेलोपियन। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं। अगर फीमेल पुअर क्वालिटी ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर रही है, एक डोनर से एग लीजिए, एग लेके इनकॉर्पोरेट कर दीजिए और अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। थर्ड मेथड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें विकी डोनर पोटेंशियल स्पर्म लीजिए, एक ही हेड को एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज करना है लैब में, और उसके बाद जो जाइगोट है उसको इनकॉर्पोरेट करना है या जिफ के थ्रू या IUT के थ्रू। मेल में लो स्पर्म काउंट है तो लो स्पर्म काउंट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? डोनर के थ्रू स्पर्म इंजेक्ट कीजिए फीमेल की बॉडी में और अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये सारे मेथड्स इन विवो हैं ICSI को छोड़ के।
क्योंकि इसमें एग और स्पर्म को लैब में ही यूज करना है, पर एक ही स्पर्म और एक ही एग को करना है, ये भी ध्यान रखना है। सरोगेसी ऑप्शन तो है ही है हमारे पास, जिसपे हम किसी फीमेल को हायर कर सकते हैं जिसके अंदर जायगोट को इम्प्लांट कर दे और 9 मंथ्स के बाद। अब एआरटीज के साथ स्पेशल प्रोफेशनल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होती है और इमोशनल इश्यूज होते हैं, अपना खून तो अपना ही होता है, तो किसी डोनर का स्पर्म नहीं लेना। इस वजह से लोग इसको और करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं क्योंकि कॉस्टली बहुत होती है, बट लीगल अडॉप्शन एक बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेरेंटहुड जिनको चाहिए उनको मिल सकता है। और मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। किसी भी फीमेल को सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आजकल और ये इंडिया में डेवलप किट है ओवू5, अगर किसी फीमेल को नहीं पता उसके फर्टाइल डेज कब चल रहे हैं, वो सिमिलरली ये यूज कर सकती है। लाइक प्लेगान्यूज के 5 यूरिन के ड्रॉप्स इस पे डालने हैं 5 ml, और उसके बाद अगर 2 रेड लाइंस है, शी इज ओवुलेटिंग एंड इट हैज 99% एफिकेसी। अगर किसी फीमेल को नहीं पता और वो किसी से बात करने में हिचकती है, और अगर वो आईवीएफ नहीं करवाना चाहती, तो ये भी इंडिया में डेवलप किट है, एट होम इंसेमिनेशन। यहां पे क्या करना है, स्पर्म्स को लॉन्च करना है, लोड करना है, वेजाइना के अंदर शूट करना है थ्रू अ कैथेटर, और इसके भी एफिकेसी चांसेस हैं 20 से 25%। तो इसके थ्रू हम कैसे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं और हम इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने इस सोशल स्टिग्मा या टैबू को दूर करना है। मैंने आपको पढ़ाया, आप बाकियों को पढ़ाना, और इनफर्टिलिटी के इस टैबू को दुनिया से मिटाना, दुनिया से मिटाना। थैंक यू। Ma'am, actually, we have an English medium school, but we are bilingual because we have police personnel as well who mainly are from rural areas that prefer Punjabi as well. So police personnel के बच्चे भी आते हैं, तो we have to teach in Punjabi, Hindi and English. No, it is a CBSE board school, but there are some police personnel as well. तो हमें थोड़ा एकदम bilingual या trilingual भी थोड़ा चीज़ों को समझाने के लिए होना पड़ता है उनके साथ। That's why. Thank you. He was very confident. The first thing which I liked personally is that you took the movie clip and you got information from the newspaper clippings, I think. Yes. Yes, that was really interesting. One thing which I felt is that if you could educate the mass, because they are grade 12, I suppose. Yes. Yes. What are the modern difficulties? Why the infertility rate is? Yes, ma'am. Actually, CBSE के through we have some projects, and my personal view is कि I assign only those projects to the children so that they can visit different hospitals and take the data and they can analyze them. And last year, like when my external examiner came, all the 17 projects, they were not from NCERT, they were from the topics related to NCERT. One student has researched from 14 cancer patients, what type of cancer they were suffering from, how the treatment was done, to which hospital did they went, and that was a file of 70 pages. And she has done a type of PhD in cancer that she said कि सर मैं बता सकती हूँ किसी भी कैंसर पेशेंट को कि उसको कहाँ विजिट करना चाहिए, and she spent 1.5 months for that. And similarly, अगर infertility के cases हैं, उसके बारे में I take them to some local laboratories where the semen testing is done, and the reports confidentially are shown to them. What is oligospermy, what is polyspermy? Like if the sperm count is low and the sperm motility is low, वो किस वजह से होता है, किस पेशेंट्स में होता है, तो उसके विजिट्स में उन्हें स्पेशली करवाता हूँ ताकि उनको डे टू डे लाइफ के साथ वो चीज़ इंटरेक्ट कर सके. और लाइक आई ट्राई टू एंगेज देम इन सम थिंग्स कि वो थोड़ा सा क्लास में डमी एडमिशंस को छोड़ के हमारी क्लासेस के लिए स्पेशली आए इन स्पाइट ऑफ कोचिंग क्लासेस. एंड आई वुड लव टू प्रेफर दिस कि मेरा कोई भी बच्चा, लाइक जितने भी बच्चे हैं, वो स्कूल के बाद हमारे साथ बैठ के नीट की तैयारी करते हैं. एंड लास्ट ईयर भी हमने 4 बच्चे नीट के लिए क्वालिफाई करवाए विद ओनली आवर कोचिंग. एंड
the district topper was from our school with 97.8% in medical, and he was just taking the questions for us. Very good. Do you incorporate the life skills also, that how our life skills have changed now? Yes. So does it affect the kind of topic which you have Yes, selected ma'am. today? Ma'am, Lifestyle, lifestyle, not yes, ma'am. skill. Ma'am, lifestyle like stress and other things like eating habits. What I have seen from the newspapers, there is a magazine that comes that is Biology Entrepreneur. उसमें specially बताया गया कि the main things that are leading to infertility, that is stress. Along with that, junk food. In junk food, the salts that are present that lead to hormonal imbalance in the female's body, and that hormonal imbalance lead to cystic formation that can cause infertility problems in the female. And in the males, the main cause behind the low sperm count is in a study in Germany that was done that if they keep their mobiles in the side pockets, the radiations that lead to the testicles that lead to low sperm count in the males as well. So I keep on discussing these topics with the children, and on Saturday we keep a Masti Ki Pathshala where a 1 hour class, the students are able to assess Tata classes themselves, and they bring their own questions, and in the class they all discuss in a GD round, and afterwards if there is any doubt then we are there to help them out. One, there is no doubt you have done a decent research and study of the topic you are trying. That's, coming to the session, मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, effectiveness of the assessment method. I am supposed to give marks on that. Yes, sir. Sir, effectiveness of The assessment method. Yes, sir. Assessment criteria. sure नहीं था. हाँ जी, got it. सर एक्चुअली टाइम अप हो गया, वो ना क्विज में क्वेश्चन है मेरा. हाँ जी. The other was आपका, I'll just close this and then we can continue with that. हाँ जी. PPT को है ना, don't put in PPT, मतलब आपकी slides, इसमें बहुत सारी slides you are skipping through. Yes, sir. This communicates lack of planning. आपको जो slides लेनी है, उतनी slide रखते हो ना, because student on the other end is reading that. Yes. But like if I am a student, I'm हाँ जी. reading it. Lastly, I found the session very much like a YouTube lecture. मतलब आपने अगर ये lecture record करके दे दिया होता, तो how will it have been different, any different from the message that it would have communicated? ये मेरा question है. हाँ जी. Sir, when I would have recorded the lecture, because I have practiced it on my panel, there was some problem. I think I was not able to shift the things. So वो 2 मिनट का गैप पड़ गया. इस वजह से I have to shift the slide and I have to conduct a quiz as well. वो मेरे पास 12 क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने बिल्कुल प्लान करके 11 मिनट और 47 सेकंड का मेरा बिल्कुल बनता था. हाँ जी. तो वो मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली बनाया था. तो अगर मतलब वो थोड़ा शिफ्ट का प्रॉब्लम ना होता, तो वो जो रिकॉर्डेड मेरा मतलब लेक्चर होता, और मैंने ये रिकॉर्डेड एक लेक्चर डाला भी था अपने यूट्यूब चैनल पे, और जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, उसके मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज है एज कम्पेयर टू एनी अदर. Exactly. So why would you want to use this in the classroom? आपको क्लासरूम में ये पढ़ाने की क्या जरूरत है अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में ही काम हो जाता है तो. So what I am trying to tell you is, why do we go to class? Yes. मतलब to teach knowledge, value, skills. Yes. So कौन सी skills, कौन सी values को हम लोग छूते हैं? आपने कहा कि किसी भी फीमेल को social stigma नहीं होना चाहिए. Yes. ये एक value है अपने आप में. Yes, sir. My firm invitation is never communicate values by articulating it. Yes. बोलकर कभी values को communicate मत करो. जी कर कर. But hugely informative piece. Thank you very much. Thank you so much. Yes, sir. हाँ जी. One more thing is that the student engagement. Yes, sir. Grade 12 में student engagement नहीं होती है. हाँ जी. मैम एक्चुअली हमारा थोड़ा मतलब मैं जो भी टॉपिक करवाना होता है
तो वन डे बिफोर आई असाइन इट टू बॉयज एंड गर्ल्स एंड मैं उन्हें अलग बिठाता हूँ कि जब मैं मतलब वो पढ़ के आते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा जवाब देगा। तो वो एक दिन पहले ही, या कई बच्चे कोचिंग जाते हैं वो पहले वो टॉपिक कर चुके होते हैं, तो क्लास में हमें मतलब मास इफेक्टिवनेस के लिए वो चीज़ ऐसे डिवाइड की होती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर। और बायोलॉजी की क्लास में तो मतलब मैं निकलवा देता हूँ आंसर। सर ऐसे है ना कि हम जो ऑब्जर्व करेंगे हाँ जी, वही बिल्कुल। वो होगा। आप क्लास में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हाँ जी। वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड सी। यस मैम, एग्जैक्टली। तो आप जो बोल रहे हैं वो आपको यहीं प्रेजेंट करना है। हाँ जी, बिल्कुल। ये असेसमेंट, हाँ जी मैम। इसके लिए लाइक आई हैव दीज 13 क्वेश्चंस, व्हाट डज ART स्टैंड फॉर, एंड सिमिलरली देयर आर अदर क्वेश्चंस। ICSI किस लिए यूज होती है, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न, बिकॉज कुछ चीजें NCERT में नहीं है तो NCERT के बाहर से लाइक आर्ट को एज है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैम I always find it interesting. मैं लास्ट ईयर्स के CBSE के क्वेश्चंस बच्चों के लिए पहले से तैयार रखता हूँ, जो लास्ट 3 या 4 साल में आए होते हैं, और नीट के क्वेश्चंस, और वो मैं उनको एज एन असाइनमेंट होमवर्क के लिए देता हूँ। एंड मैम एक्चुअली वो टाइम लैग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज मैं लास्ट ईयर के मेंशन करके